मो स्टांडा घुचे दी साइड को है से कारण ट्रैक करते पिला सब जगार उठिक पड़े आस तुम रास्ता रोच तो घुचे देख तुम कि आडजस्ट कर स्वागत भाषण ज्ञापन करें और परिचय प्रदान करें। His Excellency Governor of Odisha, Professor Ganeshilal, Sri Ravindra Kumar Panda, Secretary of the school, Sri Rajendra Prasad Avasthi, and then he obtained a postgraduate degree in mathematics. He was brilliant in profession and served as a professor in mathematics in different government colleges in Haryana between 1964 to 1991. He is married to Srimati Sushila Devi. Since 1962, Professor Lal is actively associated with Rashtriya Swayam Sevak Sangha (RSS) and held posts in Hisar, Rohtak wing of RSS. On his political assignments, Professor Lal was associated with grassroots organizations of Bharatiya Janata Party (BJP). He is a former state president of Haryana BJP, a former chairman of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP, Haryana, Ram Janmabhoomi movement. Regarding his executive and legislative positions, Professor Lal was elected as MLA from Sirsa constituency in 1996 and became a minister in the Haryana Vikas Party and BJP government under Chief Minister of Dr. Bansilal from 1996 to 99. Professor Lal was sworn in as Honorable Governor of Odisha on 29th May 2018. I once again extend my warm welcome to Professor Lal to Saraswati Sishu Vidya Mandir Keonjhar, thanking you all. Bharat Mata ki jai. आम संस्कृति कहे अतिथि देवो भव एणु आज पूज्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय को संबर्धित करने आम सरस्वती माननीय डॉक्टर कार्तिक चंद्र मिश्र महोदय को अनुरोध करुछि।
ସାର୍ ପାଖକୁ ପଳାଇ ହଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା सारे बट टिके सारे बट respected dignitaries present on the dais, media persons, students, teachers, and ladies and gentlemen. I am very much delighted to have the august presence of the Honorable Governor of Odisha in our school. I herewith present the history and achievements of our school from its inception till today. Our institution, Saraswati Sishu Vidya Mandir, Keonjhar, established in 1987, has 32 years of its glorious past. Having been started with 10 students, now 1,771 students are studying in 12 classes comprising 36 sections in Keonjhar district. Both are government and non-government level, the students of this school have brought glory and dignity from the school. Our students, Susri Baisakhi Sahu, bagged the first prize in the national level science exhibition, which was held in Bangalore last year. In 2015, Susri Dikshit Mahaguru participated in National Science Exhibition Inspire Award held in New Delhi. On the foundation day of the Sahitya Academy, Odisha, a student of our school, Susri Smruti Rekha Padiyari, has secured the first position in junior state level essay competition. For the last 5 years, our institution has made the record of scoring 100% results in the HSC examinations. Our students, Susri Nilitya Mahanta, Sriman Somyakanta Pranigrai, Jayagopal Pusti, Mohin Mohan Behera have achieved the position in the best 100 merit list published by Board of Secondary Education, Odisha. The most remarkable achievement non-government level. At the end, I would like to seek the active cooperation and contribution of the local administration, reporters and guardians for its all-round development. Last but not the least, I solicit the blessing of His Excellency Governor of Odisha for its bright future. Thanking you all. Vande Mataram. हमारे आज के मुख्य प्रश्न महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध है कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए वो शुभकामना प्रदान करें और हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की मैं आपसे कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हूं और वही मेरा भाषण होगा, वही मेरी बातचीत होगी। मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं है अपने विद्यालय में उपस्थित होकर, और विशेषकर परम पूजनीय सरसंघ चालकाध्य सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक डॉक्टर केशवराव बलिराम जी हत्या, माधवराव सदाशिवराव गोलर, उनके चरणों में नतमस्तक होने का मुझे अवसर प्रदान किया है। आपके विद्यालय के प्राचार्य महोदय ने, सेक्रेटरी ने मेरे जीवन का सबसे मेमोरेबल, मोमेंशियस और डिवाइन मोमेंट है। जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं, कृतज्ञता ज्ञापित करूं, कम है। मैं आपके पास 3-4 छोटे छोटे शब्द रखता हूं, उनके आपने अर्थ बताए। जैसे अभी परम पूज्य श्री गुरु जी का और डॉक्टर हिटगिरा का अभी उनके विग्रह का अनावरण किया। उनके जीवन की कोई एक विशेष बात आप बता सकते हैं, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई कोई एक विशेष बात, या फिर 3 और भी विग्रहों का अनावरण हुआ है, उनके विषय में कोई एक बात। कुछ सोचते रहिए, अपने पास समय है। 1 मिनट बैठो। एक शब्द और देता हूं,
उत्कर्ष इसका क्या है? प्रगति, उन्नति, प्रोग्रेस अलग विषय है। उत्कर्ष इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो एवोल्यूशन है। EVOLUTION आप सब जानते हैं। आपसे बात करने में दिक्कत नहीं आएगी। एवोल्यूशन का क्या है? एक शब्द है धर्म, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, बहुत कंफ्यूजन है, विभ्रम फैल गया है। तो ये धर्म क्या है, उत्कर्ष क्या है, धर्म क्या है? दो शब्द हो गए और दो महापुरुषों के विषय में बात हो गया। एक शब्द है ईगो सेंटरिज्म। सेंटर, ईगो, सेंटर और इज्म लगा दिया है। ईगो को उल्टा कर दें तो जियो बनता है, GEO, जियो। जियो सेंटरिज्म क्या है? बाकी विद्यालय में आते हैं तो एक शब्द और बताते हैं, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विद्या ददाति विनय। तो मैंने 5 शब्द आपके सामने फ्लोट किए हैं। यही मेरा लेक्चर के लिए बातचीत होगी। इन्हीं 5 शब्दों को हम खेलेंगे। उत्कर्ष, धर्म, ह्यूमिलिटी, ईगो सेंटरिज्म, जियो सेंटरिज्म। और जिन महापुरुषों के चित्रों का हमने अनावरण किया है, उनके विषय में कोई एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और केवल आपको नहीं, जो दुनिया को सबसे अच्छी लगती है, जिसके कारण दुनिया भारत माता को अपनी माता मानने पर मजबूर हो जाए, ऐसा कुछ भी आप में से कोई खड़ा होकर बता सकता है। जो भी बोलेगा, गलत बोले, सलत बोले, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 100 रुपया उसको पुरस्कार है। जो ठीक जवाब देगा उसको 500 है। तो आप में से कोई भी खड़ा होकर जल्दी जल्दी से 10 लोग बोल बताओगे। माइक दो। माननीय राज्यपाल जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम ज्ञापना करती हूँ। मेरा नाम प्रज्ञा परमिता दास है। मैं इस विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्री हूँ। तो आपने जिन दोनों महापुरुषों का उद्घाटन किया, उनमें से मैं श्री गुरु जी के बारे में बहुत अच्छी लगती है जो बात मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने पढ़ा था एक वही में, जहाँ पर श्री गुरु जी बहुत ही समयानुवर्तिता थे। वो सारे लोगों को समय के अनुसार चलने के लिए वार्ता देते थे। एक बार सुबह ही उनका एक स्थान पर और वो समय पर शाखा पर पहुंच गया। वो बिटिया डॉक्टर हेडगेवार से जुड़ा हुआ विषय है। फिर से पढ़ जी। पहले तो मैं आपको मेरा प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यशस्वी बात। तो आपने जब मैं आज माधव सरासित गोलवालकर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ जो मेरे दिल को छुई थी। मैंने हमारे संस्कृति ज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि उनको बहुत जिज्ञासा था। वो हर विषय में जानने के लिए बहुत इच्छुक थे। इसीलिए एक बार उन्हें एक बिच्छू ने उनके पैर में काट लिया था और उनको बहुत तेज बुखार भी आ गया था। फिर भी वो अपने पैर को पानी में डालकर पढ़ाई कर रहे थे। तो जब उन्हें किसी बड़े ने पूछा कि तुम्हें तो बुखार है, तुम्हें तो बिच्छू ने काट लिया है, फिर भी कैसे पढ़ रहे हो? तो उन्होंने जवाब देते हुए बोला था कि बिच्छू ने पैर में काटा है, दिमाग में नहीं। पढ़ने के लिए कोई बड़ा रीजन नहीं, अपने मन की जिज्ञासा ही काफी है। और आपने धर्म के बारे में कहा था, मैं धर्म के बारे में अपने मन से कहना चाहता हूँ कि भगवान ने तो हम सबको एक ही प्रकार का खून दिया है, सबके पास एक ही समान का शरीर है। तो हमने डिवाइडेशन क्रिएट किया है, वही धर्म है। धर्म का मतलब यही है कि आप चाहे अल्लाह को पूजो या हमारे भगवान को, जिसके मन में गरीबों के लिए या सबके लिए समन्वय रहता है और भगवान को जो भी समान मानता है, वही असली धर्म को समझता है। आपने जो पिछली लाइन बोली है वो सबसे अच्छी है। पूजा का उससे कोई मतलब नहीं है, भगवान का भी उससे कोई मतलब नहीं है, पर जिस विषय को आपने समन्वय करके तो कहा है। चलिए, बहुत सुंदर है। आपके 500 पक्का। धन्यवाद। 500 पक्का। दोनों को 500 पक्का है। और कोई बोलिए। So, Utkarsh, you have suggested the word first. What is curiosity? Curiosity makes a man to improve in their life. So, there is a subject that science is good or bad. It is subject of curiosity. So, if a man with a lot of curiosity, then he can succeed in this world.
So curiosity, that science is boon or bane. After even it's been 3 years, the question has started that science is boon or bane. So I wanna answer this with an example. That थोड़ा आगे करना माइक। suppose we consider a knife. So everybody know what is knife used to cut vegetables, fruits. So knife is a beautiful gift of science when it is used by doctors in operation of a human body at hospital. So in case the knife can save the most valuable life of a person. So without that knife, an operation won't be possible. But have you ever thought that if a child, if a scout person, if a thief uses a knife, then what will happen? He can easily, very easily kill someone's life. So in case of saving, in case of killing someone's life, in both the cases, the beautiful gift of science, what? That knife, it is used, but the effects are totally different. How and why? Due to the purpose of using. So at first we should know that how should we utilize the science and scientific words. It depends on us. And there is a simple example for you all that the misutilization of an atom can destroy the whole world in a twinkle of an eye. So we have to do everything. Otherwise we have a lot of go. जितना कम कहा जाए उतना अच्छा रहता है, पर क्योंकि आप तो शिशु मंदिर के विद्यार्थी हैं और जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ दूसरे को बिल्कुल ठोक के रखना है, तो इसलिए लंबा जवाब भी अच्छा लगता है, लेकिन जितना कम कहा जाए तो उतना अच्छा रहता है। आपने बहुत अच्छा बोला है, पक्का है, जितना जितना है पक्का है। और बोलिए। बच्चों को लगता है प्रिंसिपल ने बड़ी तरक्की की, हमारा प्रिंसिपल बन गया। प्रिंसिपल को लगता है कलेक्टर ने बड़ी तरक्की की है, कलेक्टर बन गया। कलेक्टर को लगता है मंत्री ने बड़ी तरक्की की है, मंत्री बन गया। मुख्यमंत्री को लगता है गवर्नर ने बड़ी तरक्की की है, गवर्नर बन गया। गवर्नर को लगता है राष्ट्रपति ने बड़ी तरक्की की है, राष्ट्रपति बन गया। इसके आगे राम नाम सत्य हो गया, तरक्की हो गया, खत्म। ये सब जमीनी है, टेम्परेरी है। राजभवन में हम रहते हैं, धर्मशाला है, पहले कोई रहता था, उससे पहले कोई रहता था, उससे पहले कोई रहता था। राजभवन थोड़ा धर्मशाला है, ऐसे हमारे घर है। धर्मशाला यही होता है, आ जाए कल चला गया 3 दिन के बाद। ये परमानेंट तो नहीं है ना, मेटेरियलिस्टिक है, भौतिक है, जमीनी है। एवोल्यूशन आसमानी है, एवोल्यूशन आपके इनर बीइंग से, जो आपके बॉडी का सूक्ष्मतम है सत्ता, द सटलेस्ट पार्ट इन योर बॉडी, दैट इज सत्यम शिवम सुंदर, उसके साथ एवोल्यूशन जुड़ा है। प्रगति शरीर के साथ जुड़ा है, उसकी सुख सुविधा के लिए जुड़ा है। लेकिन असली तरक्की जो परमानेंट रहती है, इसको एक गीत से सुनाते हैं। हम बहुत पहले जब बच्चे थे और आप भी थे, अभी भी गाते थे, तो एक गीत गाते थे, भजन गाते थे। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता, यानी जगन्नाथ, दुनिया के पालनहार, ये है उत्कर्ष। कांटे भी उतने ही प्रिय हैं जितने फूल। आम दुनिया के आदमी को कांटे प्रिय नहीं होते, जरा सा लग जाए तो चिल्लाने लगता है, जरा सा इंटरेस्ट उसका हैम्पर हो जाए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल थोड़ा सा भी कहीं तकलीफ हो जाए, मार दिया भगवान ने, पता नहीं ससुरा कहां सो रहा है, उसको ध्यान में नहीं आता मेरा, इतना तकलीफ दे दिया है। लेकिन नहीं, तेरे कांटों से भी मोहब्बत है, उतना ही प्रेम करते हैं। जैसे बिच्छू ने काटा, उसने अपना काम किया, उसका काम था कर दिया, हमने अपना काम था हमने कर दिया। हम अपने काम में मस्त है, वो अपने काम में मस्त है। बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? इसलिए तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के पालन, ये है उत्कर्ष। वासुदेवम सर्वम इति, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, तुम ही सबके पीछे हो।
मेरी एग्जिस्टेंस के पीछे भी तुम हो, मेरी नॉन एग्जिस्टेंस के पीछे भी तुम हो। मेरा अस्तित्व भी तुम्हारे कारण है और मेरा अस्तित्व ना रहे वह भी तुम्हारे कारण है। इसको हम उत्कर्ष कर बोलते हैं। तो ये उत्कर्ष की जो परिभाषा है, ये अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो उन्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। और उसको प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि प्रकृति की गोद में चले जाएं। यहाँ तो चारों मेरी नेचर है, किसी भी दरख्त के नीचे थोड़ा बैठिए। जब बैठेंगे तो आपको बहुत चीजें ध्यान में है। अब जैसे the apple didn't fall when it was green but ripe. सेब गिरा, न्यूटन ने सोचा ग्रेविटेशन पुल, तो भाई वो हरा था तब तो नहीं गिरा। फिर दूसरा होता है कि सेब गिराया किसने और फिर वो आकर्षण शक्ति बनाई किसने। जब आप सोचेंगे इसे तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि ना हो मेरा जो बॉडी है ग्रॉस, मेरा जो आकाश शरीर है और मेरा जो सटल बॉडी है, उससे ऊपर भी कोई बॉडी है जिसको मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी एंड बॉडीलेस बॉडी, 7 तरह का शरीर है। दुनिया 3 तरह के शरीर पर आकर थम जाता है। 3 शरीर से जो ऊपर निकलता है उसको हम उत्कर्ष बोलते हैं। धरती पर जो नाच होता है और आसमान के बीच में होता है उसको नृत्य बोलते हैं, रास बोलते हैं। जो धरती से नीचे होता है और आकाश से ऊपर होता है उसको महारास बोलते हैं। वो विजिबल नहीं होता, वो किधर दिखता है? जब आप प्रकृति की गोद में जाएंगे, जब आप डैफोडिल्स को नाचता हुआ देखेंगे, तितली को उड़ता हुआ देखेंगे, जुगनू को चमचमाता हुआ देखेंगे, झरने को गिरता हुआ देखेंगे, पानी में पत्ते को बहता हुआ देखेंगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि महाराज किसको कहते हैं। पत्ते को नाचता हुआ हमने नहीं देखा है, हमने झरने को नाचता हुआ नहीं देखा। इसलिए उत्कर्ष विद्यालय जो हमारे बने हैं ये आपके उत्कर्ष के लिए बने हैं। इंफॉर्मेशन लेंगे, इंटेलिजेंस प्राप्त करेंगे, विजडम प्राप्त करेंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे। जैसे एलियट कहते हैं कि the endless cycle of ideation, the endless cycle of experiments and the endless cycle of discoveries or whatever it is, brings us the knowledge of motion but not of stillness, brings us the knowledge of speech but not of silence, brings us the knowledge of words but ignorance of the words. शब्द का ignorance रहता है, मोशन की लाश तो हमको मालूम है, शांत कैसे रहते हैं इसको साइंस नहीं सिखा सकता। भाषण करना सीख सकते हैं पर चुप रहना, मौन रहना साइंस नहीं सिखा सकता। इसलिए उत्कर्ष का मतलब होगा कि फिजिक्स के साथ मेटाफिजिक्स भी रहे, टेक्नोलॉजी के साथ थियोलॉजी भी रहे, क्रिएटिविटी के साथ एवोल्यूशन। ये हमारा पहला शब्द। अभी दूसरा धर्म के बारे में किसने बताया? कोई और बता सकता है धर्म क्या है? बहुत बखेड़ा मचा रखा है इसमें। मार्क्स जैसा तो कहता था थी नहीं। ऐसे दुनिया में दुनिया भर के लोगों ने दुनिया तरह की बातें की। तो कोई बताए धर्म का क्या अर्थ है? अभी सब संत बोलते हैं ना, धर्म धर्म धर्म, भारत का एक ही मात्र धर्म है। धर्म नहीं रहा तो भारत नहीं रहेगा, धर्म है तो भारत है। तो ऐसा क्या है धर्म? बताओ, कोई भी बताए खड़ा। जिसको 500 लेना है वो बताए, गलत बताए सलत। हाँ बोलो बेटिया। उसका मानसिकता है, पर हमने अपने धर्म को हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम के बना दिया है। इस वजह से हम बहुत सारे लोगों धर्म की वजह से मारे जाते हैं, तो कहीं धर्म की वजह से लोगों की घरें चली जाती हैं, तो धर्म की वजह से परिवार चली जाती है। अगर हम अपने मन को अपना धर्म समझ ले, अपने काम को अपना धर्म समझ ले, तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो धर्म के नाम में मारगोल करेगा और मरेगा। इतना कहते हैं। आपने दोनों बातें प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज वो धर्म है, एक आपका कहने का था।
लेकिन और कोई बताना चाहते हैं? तुम पहले बोल चुके हो, फिर दोबारा से 500 नहीं मिलेंगे, बोल तो सकते बोलो लो चार्ज नेट कर बोलो बोलो, तुम्हारी बात सुन जाएगी, टाइम बचेगा, बोलो। सर मेरे मतलब से धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो धर्म होता है जिसे हम भगवान मानकर 4 प्रकार से बांट चुके हैं, लेकिन मेरे मन से धर्म वो सच है जिसे हम अपना मानते हैं। मेरा धर्म क्या है? मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मेरा धर्म पढ़ना है। आप हमारे राज्य के राज्यपाल हैं तो आपका धर्म है जो आप जानते हैं। सभी मनुष्य को कुछ न कुछ धर्म होता है। बड़ा सुंदर, इसमें का सब्जेक्टिव है, आप किसी पर लाद नहीं सकते। ये प्योरली कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल की, व्यक्ति से संबंधित है, इसको दूसरों पर मत लाइए। आपने बहुत अच्छा किया। मैं क्रिश्चियन हूँ, दूसरों के क्रिश्चियन बनाना ये धर्म नहीं है, इसलिए किसी पर लादिए मत, सब्जेक्टिव। चलो बोलो। सिख धर्म के गुरु सत श्री अकाल है। हिंदू धर्म वेद पढ़ रहा है, लेकिन ये सब धर्म एक ही है। हम सब अपने कर्म को यदि अपना धर्म समझ ले वो बराबर आपने उन्हीं की बात को बोल दिया, वो पीछे जो बोले फिर कहा, पर एक सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म और सत्य, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, ट्रुथ, गुडनेस, कंपैशन, लव, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब फिर लोग पूछेंगे सत्य क्या है, प्रेम क्या है, करुणा क्या है, ऐसा सब बोलेंगे ना। तो बड़ा सुंदर एक गीत बना फिल्म में, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी दिल जमाने के लिए, ये है था, ये ध्यान में रहेगा। बाकी बड़ी बड़ी फिलॉसफी से कंफ्यूज हो जाता। सत्य धर्म है और पूछेगा सत्य क्या है, प्रेम धर्म है, प्रेम को डिफाइन करिए, करुणा को डिफाइन करिए, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे लोगों ने बड़े प्यार से कहा कि अपने लिए जीते हैं तो क्या जीते हैं, दूसरे के लिए जीना सीखिए। आपके भूमा भाई है ना उड़ीसा के, अपने लेट द वर्ल्ड बी रिडीम्ड एट माय कॉस्ट, बुद्धा यही तो बोलता है, इवन वन पर्सन इज हंग्री आई एम रेडी टू गो हेल्स एंड हेल्स फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। लेकिन वो आदमी भूखा नहीं रहना। महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई कदम उठाते हैं, ये देख लीजिए उस कदम के उठाने से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल मे नॉट बी इफेक्टेड। ऐसा कदम उठाने से किसी पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हाथ धुला रहा है महात्मा गांधी के, लोटा 2-3 फेंक दिया पानी का, उसने कहा भाई पानी इतना क्यों वेस्ट कर रहे हो, बोले गंगा बह रही है। तो बोले तेरे पिताजी ने भाई ठीक है गंगा, कि सारा पानी खराब करने का ठेका ले रखा, पानी तक भी दूसरे का खराब नहीं किया। अभी देश में हरिद्वार से लेकर बंगाल तक आप पानी में नहा नहीं सकते, पीने की बात तो छोड़ी। सब फैक्ट्री वालों ने दुनिया भर का गंद फेंक कर पानी को उसमें मरकरी डाल कर जिंदगियां खराब कर दी, जिंदगियां बहा कर दी। 71 लोग तो मर गए गाजियाबाद, फैक्ट्रियां बंद की गई। अब वो मंदिर भी रखा है, फैक्ट्री में तिलक भी लगा है, सब कुछ कर रहा है। लोग कहेंगे बड़ा धार्मिक है, धार्मिक कहाँ का, हत्यारा है। धार्मिक का धर्म का मतलब सीधा सीधा है, कोई पूजा पद्धति से इसका मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, ईसाई से इसका कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। 11 सितंबर 1893 का कोई दिन याद है किसी को? क्या खास बात थी, कौन बताएगा? 11 सितंबर 1893 को क्या हुआ था? आप तो बोल चुके बहुत अच्छा, और कोई बता सकता है? व्हाट इज 11 सितंबर 1893? क्या खास बात है, कोई बता सकता है?
बस नहीं बताएंगे? हाँ बताओ। हैं? कौन गया था वहाँ? कौन गया था वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो, 7,000 कैपेसिटी। विवेकानंद क्या बोले वहाँ? मेरे भाई और बहन है। और अभी थोड़ा उल्ट गई, बहनों और भाइयों का, भाई और बहनों नहीं का। बहन को इंपॉर्टेंस दिया। आप पढ़कर देखेंगे बहुत अंतर है। अगर उसकी बात सुनी होती, उनकी बात सुनी होती तो बेटी बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आपके देश में सिस्टर को वाइफ मानते हैं, मेरे देश में बेटी को सिस्टर को मां मानते हैं। दैट इज द डिफरेंस। आपके देश में एक बच्ची को भोग्य वस्तु मानते हैं, मेरे देश में एक बच्ची को पूजा की वस्तु मानते हैं। लेकिन एक विशेष वहां पर संस्कृत का उन्होंने श्लोक उद्धृत किया था, कोई बता सकता हो तो 1,000 रुपीज। एक संस्कृत का श्लोक बोला, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो तो इंग्लिश में देखिए, हिंदी में बता सकते हो तो हिंदी में बताइए, उड़िया में बता सकते हो तो। हाँ बोलो। कुटुंबकम। ना भाई, फिर भी 100 रुपया पक्का मांगे। वसुधैव कुटुंबकम नहीं बोला है। तान तथैव भजाम्यहम् माम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। जिस मर्जी रास्ते से कोई भी आए वो मेरी तरफ ही आएगा, मेरे पास ही आएगा। पार्थ को कहते हैं कि झगड़े मत करिए, क्रिश्चियन हिंदू फलाना झगड़ा, इस पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तुमको जिधर से अच्छा लगता है, गाली देकर आना चाहते हो गाली देकर आ जाओ। अभी अपने प्रभु जगन्नाथ है ना, लोग कहते हैं इसको गाली दो तो जल्दी सुनता है। आपको मालूम है क्या ये बात? चैतन्य महाप्रभु कहते थे कहानियां है, मालूम है आपको? मैं सुषमा दीदी से मिला, कहने लगे प्रोफेसर वो जो है ना वहां पर प्रभु जगन्नाथ, वो गाली दो तो ज्यादा सुनता है। तूने अभी तक मेरा ख्याल नहीं रखा, कहाँ सो रहा है, किधर बैठा है? रुक्मणी के पास बैठा है, राधा के पास बैठा है, सत्यभामा के पास बैठा है, जामवंती के पास बैठा है, तू आषाढ़ लेके बैठा है, मेरे पास एक भी काबू आती खाना देता है, सब बोले रहा। गाली दे के बोलेंगे तो सुनता है। बहुत ब्यूटीफुल है प्रभु जगन्नाथ। इससे ऐसा देवता, सांस्कृतिक देवता वर्णन में कहीं नहीं निकलता है घर से 84 लाख लोगों के लिए, 84 लाख योनियों के लिए, कीड़ा मकौड़ा दरखत दंगल सबको दर्शन देता है। ये यथा माम प्रत्यक्षन्ते, जिस तरह से मतलब है। अभी एक ह्यूमिलिटी शब्द रह गया, विद्याधता दीदी ने, इसके बारे में, विनम्रता के बारे में कोई एक बात बताए, फिर हम खत्म करते हैं। विनम्रता क्या होती है, कौन बताएगा? देना भैया, माइक देना। महामहिम राज्यपाल जी, पहले मैं आपको अपना प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मेरे ख्याल से विनम्रता वो है जो मानव को मानविकता सिखाती है। जब किसी का दुख देखकर किसी का दिल रोता है तब उसे विनम्रता कहते हैं। बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा। और तो अच्छा, चलिए अब हम खत्म करते हैं क्योंकि समय हो गया है। हम 2-3 बातें आपको तुरंत बताते हैं। बहुत अच्छे से बताया है। विनम्रता का अर्थ है कि I'm not hankering after anything, no materialistic desires। कोई मेरी भौतिक किसी प्रकार की वासना नहीं, neither fame, nor name, nor wealth। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े मां के चरणों में। भारत माता की जय, केवल शब्द पड़े जग के कर्मों में, मेरे कर्मों में। एक बात बताइए, मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बगैर बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पहुंच गए।
ये विनम्रता है कि नहीं? कोई बड़ा आदमी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का रक्षा कवच पहनने वाला व्यक्ति, 125 करोड़ का प्रहरी, नौकर, सेवादार, प्रधान सेवक, बिना निमंत्रण के एक ऐसा देश जो हर तरह से कंगाल है, लेकिन उसके राष्ट्राध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को बगैर बुलाए जाकर उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें, ये विनम्रता है कि नहीं? है क्या? बोलो जोर से, है ना? इसको विनम्रता कहते हैं। एक मैंने शब्द ईगो सेंट्रिज्म लिया। ईगो कहते हैं अहंभागिता, मैं ही, जैसे रावण, लंका जल गई, ईगो मैं ही हूं। फिर अंगद गया, एक मारा लात जोर से, चारों मुकुट उखाड़ कर फेंक मारे। सत्ता कभी अचल नहीं होती है, अंगद की एक लात से उखड़ जाती है, लेकिन फिर भी मायावी है, मैं हूं ना। इसको बोलते हैं ईगो सेंटरिज्म। ये है ईगो सेंटरिज्म। सब कुछ दिख रहा है, बर्बाद होगा, फिर भी लगता है मैं। आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित। और जियो सेंट्रिज्म क्या होता है? भू केंद्रित, ब्रह्मांड केंद्रित। अहम केंद्रित से, ईगो सेंट्रिज्म से जियो सेंट्रिज्म, उसके केंद्र पर पहुंचना। अर्थात इसका मिसाल क्या होगा? आप किसी का भी महापुरुष का ले सकते हैं, जिनके भी चित्र आपने अनावरण किए हैं। श्री गुरु जी के बारे में जैसे मैंने कहा, कोई बात बताएं, तो एक बार धर्म युग ने कहा था कि अपना अपना संदेश भेजें, हमको पत्रिका में छापना। गोलवलकर जी ने एक लाइन लिखा, मैं नहीं तू ही, मैं नहीं तू। आज का मॉडर्न साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स इरामिन कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स को जैसे आप अनफोल्ड करेंगे तो वेदांतिक फिलॉसफी पर आप पहुंच जाएंगे। तत्त्वमसि तू ही, मैं नहीं तू ही। राष्ट्राय इदम न मम, पढ़ा है ना? राष्ट्राय इदम न मम, राष्ट्राय स्वाहा। तो मैं नहीं तू ही, ये ईगो सेंट्रिज्म से जियो सेंट्रिज्म की तरफ जाना। अखंडानंद विवेकानंद के शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, विवेकानंद के शिष्य थे अखंडानंद, अखंडानंद के शिष्य थे गोलवलकर। तो अखंडानंद ने यह कहा था कि जीवन का लक्ष्य है फ्रॉम ईगो सेंट्रिज्म टू जियो सेंट्रिज्म। मैंने शुरू में जिस रेवोल्यूशन की बात की, उसी बात को मैं अंत कर रहा हूं कि हम सब का लक्ष्य है कि हम ईगो सेंट्रिज्म से जियो सेंट्रिज्म की तरफ जाएं। उसका सबसे आसान तरीका है कि प्रकृति की गोद में अकेले बैठे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। नहीं बैठ सकते तो रात को बिस्तर पर लेटते समय डैफोडिल्स की पोएम पढ़ी है ना? Whenever I lie upon my couch in a pensive mood, that flashes upon my inward eye, and that is the bliss of solitude. एकांत में कभी आपने तितली को देखा? रात को बिस्तर पर एक लात पे दूसरी लात रखकर सोचे बैठे और उस तितली को याद किया, तो आपके मन में जो मुस्कान उठेगी, हृदय में जो मुस्कान उठेगी, उस पर सारी दुनिया की दौलत न्यौछावर की जा सकती है। ऐसी आपकी मुस्कान होगी। ये नकली मुस्कान नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके मंदिर में आए हैं, मंदिर में आते हैं तो आदमी भेंट करता है, तो 1 लाख रुपया आपको विद्यालय को मेरी तरफ से तुच्छ सुनाना की As our culture of Odisha, Aditi Devo Bhava. So I would like to request our Pradhana Secretary, Mr. Rajendra Prasad Avasti, for vote of thanks. His Excellency Governor of Odisha, Professor Ganesh Lal, respected dignitary on the dais and in front of the dais. My loving teachers and students of the school, really I feel very delighted at the presence of the Honorable Governor of Odisha in our school premises. First of all, I convey my respect and utmost gratitude to the Honorable Governor of Odisha, whose presence has made the program a grand success.
I am also grateful to all the officials of district administration, dignitary, reporters, teachers, and students of our school for their kind cooperation and contribution for the smooth organization of such a program. Once again, I convey my sincere thanks to all. Thank you all. Bharat Mata ki Jai. Product review with no substance.